Good morning, friends. Welcome to our class. Dear students, what does Earth comprise of? Comprise means समाविष्ट होना. What does Earth comprise of? Earth के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? You know very well. There are animals, birds, trees, plants, different kinds of creatures, isn't it? Now you tell me, which powerful animal do we find in jungle? Which is the most powerful animal? Which is the most powerful animal in the forest or jungle? Of course, you know it. Lion, tiger, leopard, etc. Isn't it? So, sometimes to show people where is this animal kept for, huh? Where is this animal kept for show? Lion, tiger, where do we keep? We keep them in the zoo. So today we are going to learn a poem, A Tiger in the Zoo. Poet is Leslie Norris. Leslie Norris is a United Kingdom poet from Wales. United Kingdom means United Kingdom is of England, Scotland, Wales and Northern Ireland countries. Get togetherly it is formed United Kingdom. So Leslie Norris is a famous Welsh poet. So dear students, this poem contrasts a tiger when it is in its natural habitat. Habitat यानी रहवास निवास. And when it is imprisoned in a zoo. Imprison यानी अंदर डालना जेल में वगैरह. तो ये पोयम में ये जो टाइगर है ना, ये नेचुरली फॉरेस्ट में रहता है और जू में रहता है. ये दोनों का एक कॉन्ट्रास्ट किया है. कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? एक कंपैरिजन, तुलना करना. तो वी विल रीड स्टैंजा बाय स्टैंजा एंड एक्सप्लेन इट. ओके, वी विल read the poem stanza by stanza and get its explanation. Stanza means poetic lines which are formed in a specific para or paragraph. It is called a stanza, or we may also call it poetic lines. Okay, first stanza. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet, quiet in his quiet rage. So what are the meanings of new words? Here it is given. Stalk means to move quietly and slowly. धीरे से, शांति से, चुपचाप चलना उसको स्टॉक बोलते हैं. Stalking, STALK. L is silent there. S is suffixed because that is third person singular present, simple present tense. Then vivid. Vivid means स्पष्ट. विविड का मतलब क्या होता है? स्पष्ट, स्ट्रॉन्ग एंड ब्राइट. स्ट्राइप्स. स्ट्राइप्स यानी लॉन्ग नैरो बैंड्स, जो ऐसे पट्टे रहते हैं ना टाइगर के, लेपर्ड के बॉडी के ऊपर, उसको स्ट्राइप्स बोलते हैं. लॉन्ग नैरो बैंड्स. बैंड्स यानी पट्टे. पैड्स, सॉफ्ट पार्ट्स अंडर द फीट. कैट, टाइगर, उसके पाँव के नीचे ऐसे मुलायम जो पंजा रहता है उसको पैड्स बोलते हैं. पैड्स ऑफ वेलवेट. वेलवेट यानी जो ये सिल्क का स्मूथ मुलायम जो कपड़ा रहता है ना उसको वेलवेट बोलते हैं. तो ये टाइगर, लायन और कैट जो रहते हैं ना, इनके जो पंजे रहते हैं ना वो नीचे एकदम ये ऐसे फ्लपी सिल्क के कपड़े के जैसे मुलायम रहते हैं, इसीलिए उसको पैड्स ऑफ वेलवेट बोलते हैं. स्मॉल वेलवेटी पैड्स. पैड यानी कुशन. क्वाइट रेज, फुल ऑफ रेज बट क्वाइट. रेज यानी गुस्सा, एंगर. RAGE. रेज यानी गुस्सा, एंगर. एक दूसरा वर्ड है रात, WRATH. सो व्हाट आर दीज
lines are saying us he stalks in his vivid stripes. ये जो टाइगर है ना वो ऐसे पट्टे वाला, वो द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, उसके पिंजरे में जो बंद किया है जू में, तो वो पिंजरे के अंदर ही वो पट्टेदार जो टाइगर है एकदम शांत और धीरे से अंदर ही अंदर वो पिंजरे के चलता है। लेकिन चलता है मतलब वो ऐसे प्राउडी है, वो स्टॉक्स इन क्वाइट एंड स्लोली मूड इट मीन्स, बट ही इज प्राउडी कंसिस्टेड ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। पिंजरे के अंदर है तो भी गुस्से में है। व्हाई व्हाई इज एंग्री? बिकॉज दैट टाइगर्स पर्सनैलिटी इज लाइक दैट, एंग्री। See here the picture or image of the tiger is shown. He is confined behind the bars of the cage. Behind the bars यानी वो पिंजरे के जो सलाखे है उसके पीछे, ये देखो गुस्से में है लेकिन तो भी दिमागदार है वो, isn't it? और in this poem you will find that rhyming scheme is there. Stripes, cage, quiet, rage. Huh? Cage is rhyming with rage. Stripes and quiet are quite different, so you put AB alphas for them. So what is the rhyming scheme here? AB. Stripes A, cage B, quiet is again different, so put A, and for again rage give B alpha. So the rhyming scheme will be AB। स्ट्राइप के लिए A, केज के लिए B, क्वाइट के लिए A फिर से, और रेज के लिए B। तो केज और रेज सेम है इसलिए BB, और स्ट्राइप और क्वाइट अलग अलग है तो AA। तो राइमिंग स्कीम हो गया AB ऐसा। So this rhyming scheme is for all the stanzas here. Now second stanza, see, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. Now lurking, dear students, what is lurking? Lurking means lying hidden in order to attack. मतलब किसी के ऊपर अटैक करने के लिए जो छिपा हुआ रहता है ना, लायन, टाइगर, लेपर्ड, उसको लर्किंग बोलते हैं। छिपे हुए पोजीशन में, दैट इज कॉल्ड लर्किंग। स्लाइडिंग, मूविंग वेरी स्लोली, धीरे धीरे से ऐसे सरकते हुए जाना घास में से वगैरह। सांप हो, कोबरा हो, या लायन हो, या टाइगर हो, दे ऑलवेज स्लाइड टू अटैक देयर प्रेज। प्रेज यानी भक्ष्य, PREY, खाना। वाटर होल यानी कि वाटर बॉडीज, लेक, वाटर रिजर्वायर, एनीवन। प्लेस वेयर वाटर कलेक्ट्स एंड एनिमल्स गो टू ड्रिंक। वाटर होल यानी जो तालाब वगैरह रहते हैं ना, वहाँ पानी पीने के लिए जाते हैं लायन, टाइगर रात में कभी भी। प्लम्प यानी हेल्दी या तो फैट। सो व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन हियर? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। शैडो यानी छाव, पेड़ की छाव, या रात में डार्कनेस जो रहता है वो शैडो। तो प्यारे बच्चों, ये जो है ना, ये लायन को ही ह्यूमैनिटी जैसा उसको ट्रीटमेंट दिया है, इसलिए उधर ही प्रोनाउन यूज किया है उसके लिए। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, तो वो छाव में, पेड़ के छाव में आसपास वो ऐसे छिपा हुआ रहता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे घास में से छिपे हुए सरकते सरकते आगे बढ़ता है। नियर द वाटर होल, पानी के तालाब के तरफ। कहा? वेयर प्लम डियर पास, जहां से एक मस्त गुबगुबित ऐसा हेल्दी डियर वहां से पास होता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए ऐसा छिपे हुए पोजीशन में रहता है। तो इधर भी राइमिंग स्कीम जो है, शैडो, ग्रास, होल, पास। तो AB, शैडो A, ग्रास B, होल A, पास अगेन B, AB। नेक्स्ट, सी हियर, ये जो टाइगर है ना पिक्चर में दिखा है, वो घास के अंदर या ऐसे कई छाव रहता है, ऐसा छिपा हुआ रहता है, और दूर से देख रहा है कोई डियर वगैरह ऐसे तालाब के तरफ पहुंचेगा तो ये तुरंत जाएगा और अटैक कर देगा, राइट? नेक्स्ट, स्टैंजा 3, he should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. Word meaning see here, snarling means growling. ये जो टाइगर ऐसा करता है ना, that is called snarling sound, growling sound, isn't it? तो snarling का मतलब है growling यानी कि गुर्राना। बेरिंग यानी ओपन दिखाना, शोइंग। फैंग्स, लॉन्ग शार्प टीथ। लायन, टाइगर के जो ऐसे दांत रहते हैं ना नुकीले, तो उसको फैंग्स बोलते हैं। कोबरा के भी ऐसे रहते हैं। टेरराइजिंग यानी डराने वाला।
causing great fear. So what is the description here? He should be snarling around houses. तो इसका उच्चार houses करने का. तो फिर ये अभी ये जो टाइगर है ना, ये जू में नहीं है, इधर पोएट जो है ना उसको थोड़ा अलग सा ले रहा है. मतलब कैसे, पहले टाइगर को इधर जेल बंद करके जू में रखा है, फिर बाद में वो हमें फॉरेस्ट में लेके जाता है उसका डिस्क्रिप्शन के लिए, फिर से बाद में वो जू में लाता है. तो ऐसा वो कंपेरेटिव स्टडी है, कॉन्ट्रास्टिंग है. हाँ, तो ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस. तो अभी वो जंगल के पास, गांव के पास पहुंचता है बाउंड्री एरिया में, और ऐसा आवाज करते हुए लोगों को डराता है घर के आसपास आते हुए. एट द जंगल्स एज. एज का मतलब इधर बॉर्डर एरिया. एज का मतलब चाकू की धार होती है उसको भी एज बोलते हैं, EDGE. लेकिन इधर एज का मतलब है बॉर्डर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट. तो वहाँ ये जंगल के बॉर्डर एरिया के गांव के पास ये टाइगर पहुंचता है, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, और अपने खुले दांतों को ऐसा दिखाता है, बड़े बड़े नुकीले. हिज क्लॉज, उसके पंजों को भी ऐसे सवारता है. क्लॉ का मतलब पंजा, ये जो नेल्स वाला, उसके नेल्स जो रहते हैं ना, नाखून बहुत बड़े लंबे रहते हैं, एक नाखून मार दे तो आपको हमें नोच डालेगा वो. टेरराइजिंग द विलेज, और विलेज के लोगों को डराता है वो. टेरराइज का मतलब डराना. तो लाइक दिस, देखो इधर ये पिक्चर में कैसा वो ऐसा ग्राउलिंग, अपना जॉ को फाड़ते हुए आवाज करते हुए ऐसा उसका रूप, उग्र रूप दिखाया है और लोगों को डराता है. नाउ नेक्स्ट सी stanza 4. Now here again in stanza 4 and 5 that tiger is locked once again in the zoo, but he is locked in a concrete cell. Concrete cell का मतलब क्या होता है? ये जो सीमेंट कंक्रीट की जो खोली रहती है ना उसको कंक्रीट सेल बोलते हैं. जैसे जेल में भी रहता है अपने इनको रखने के लिए, कैदियों को रखने के लिए. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स. तो स्टैंजा 4 में फिर से टाइगर को जू में पकड़ के लाया है. पहले जू में रखा, फिर बाद में फॉरेस्ट में छोड़ दिया, फिर से और जू में लेके आया पोएट उसको. मतलब एक कंपैरिजन है. बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल. तो फिर से जू में ये अपनी बंद खोली में नीचे ऐसा कंक्रीट का उसका रूम रहता है, आजू बाजू में पिंजरा रहता है, लोगों को देखने के लिए आजू बाजू के साइड में कठड़े रहते हैं पिंजरे के, बार्स के, सलिया के, और नीचे ऐसा सीमेंट कंक्रीट का बनाया हुआ खोली रहता है. तो ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्ट्रेंथ यानी ताकत, पावर. टाइगर इज वेरी पावरफुल एनिमल, बट स्टिल हिज पावर इज नाउ नो मोर. इट इज कन्फाइंड बिहाइंड द बार्स. सलियों के पीछे उसको बंद कर दिया है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज. सिर्फ वो अभी वो पिंजरे के अंदर ही, उधर ही क्या कर रहा है, रपेट कर रहा है, चल रहा है, बस कुछ नहीं. दिमागदार मूड से चल रहा है लेकिन बंद है ना. इग्नोरिंग विजिटर्स. और देखो इग्नोरिंग यानी ध्यान न देना. इधर ये वर्ड मीनिंग दिया है, यू प्लीज सी. एंड ये पिंजरे के अंदर ये ऐसा जो टाइगर है उसको देखने के लिए देखो, ये जू में लोग आजू बाजू से क्राउड कर रहे हैं. टाइगर इन सेल, वो बंद खोली में है, नीचे सीमेंट कंक्रीट के आजू बाजू से वो सलिया पिंजरा है, वो टाइगर दिखाई दे रहा है, एकदम गरीब सा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका अपीयरेंस जो है, पर्सनैलिटी टाइगर का टाइगर जैसा ही रहेगा गुस्से में, और आजू बाजू में वो लोग देख रहे हैं. तो क्या करेगा, लेकिन वो अभी उधर अंदर बंद है. इग्नोरिंग का मतलब क्या होता है? नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू. जब हम किसी को रिफ्यूज करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इग्नोर. नाउ इन स्टैंजा 5, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. तो अभी डियर स्टूडेंट्स क्या करेगा, अभी तो उसको कोई खुला ऐसा आज़ादी नहीं मिल रहा है, और ना तो बाहर जा सकता है. उसको तो बहुत घूमने की इच्छा है, अपना खाना खुद ढूंढने की इच्छा है, लेकिन पिंजरे के अंदर उसको ला खड़ा किया है, तो क्या करेगा. तो बहुत समय तक वो राह देखता है बाहर निकलने की, लेकिन नहीं निकल पाता है. तो आखिर में शांत वही बैठ के क्या करता है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट. हियर यानी सुनना, वॉइस यानी साउंड, आवाज. ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट. रात में एक थकते हुए एक लास्ट आवाज सुनता है. काय की? द पेट्रोलिंग कार्स. पेट्रोलिंग यानी क्या, ये पुलिस सिक्योरिटी गार्ड्स, जो पुलिस वाले लोग रहते हैं ना, वो गांव में सभी एरिया अपना सेफ और कोई ट्रबल, किसी को प्रॉब्लम नहीं है,
ये देखने के लिए जो गश्त लगाते हैं उसको पेट्रोलिंग बोलते हैं। तो ये पुलिस के वैन कार आते हैं रात में, उसकी आवाज़ें आती है उनके सायरन की और गाड़ियों के फायरिंग की, मशीन की, वो चुपचाप सुनते रहता है नाइट के शांत मूड में, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और रात के ये स्काई में, अंधेरे वाले स्काई में जो चमकते हुए सितारे रहते हैं, तो चमकते हुए सितारों के तरफ वो अपनी चमकीली आंखों से देखता है और एक नजरिया लगा के देखता है। स्टेयर का मतलब क्या है? जब हम कोई एक उद्देश्यपूर्ण भाव से किसी एक चीज की तरफ लगातार देखते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेयरिंग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गेजिंग, टू सी कंटिन्यूसली एट वन पर्टिकुलर थिंग विथ अ पर्पस, दैट इज कॉल्ड स्टेयरिंग। तो फिर इसको अभी कुछ काम नहीं है, तो इसी तरह से शांत भाव से चमकीली आंखों से वो सितारों की तरफ देखते रहता है। तो ऐसे ये पोएम का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया। तो you please once again read the poem and solve its question and answer. See here that image of the tiger is shown at night. He is quietly listening the patrolling cars firing and siren sound, horn sound of police vans, and looking at the stars silently with his bright eyes. Thank you very much.